Okay, good morning, fencers, panel of expert, coaches. आज हमारा सेशन जो है आपको पता है पटियाला से ही रहेगा और सेशन में किशन कोच साहब जो है फर्स्ट पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट हमारे साइकोलॉजी के एक्सपर्ट दीपक मिश्रा सर, डॉक्टर दीपक मिश्रा जी आपको साइकोलॉजी का सेशन जो है वो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स बाद में वो सेशन रहेगा। तो गेट रेडी फॉर द मॉर्निंग सेशन। किशन को सर प्लीज। Morning friends, let's start with the mild stretch. To mild stretch करने के लिए relax your body, just stretch, shake. Now cross your fingers, extend upwards, stretch your body up. Yes. Stretch maximum and now slowly release it. Now hold your left elbow, pull it towards right side, pull करना है. Yes. Now slowly release it, change side, hold it and pull it. Come back, relax. Now delta stretch. Group straight रखें, face to left side. Change, other side. Come back. Only legs according to hips. Slowly turn toward the left side. Try to see your right knee. Change. Come back. Now, slowly bend forward. Slowly up. Go back and hold. Come back. Bring your left leg forward. Slowly bend forward. Try to keep your both legs straight. Bend forward. Come back. Change other side. Slowly bend forward. Come back. Leg sideways. Bend your left knee. Change. Right. Come back. Hold your left ankle. Change. Right. In front. Change. Come back. Now walk on toes. Walk on knee. Right sole of the inside. Outside. Straight. Now ankle rotation. Reverse. Foot change. Reverse. Okay, relax. Now we'll start with jog. Jog. Jog around. Jog करें.
Jog, jog. Back to running. Back. Okay, straight. Sideways. Swing करें arms को. Now side change. Okay, straight. Kick करना है forward, body को lean backwards रखना है. Keep it straight. Same exercise with kick. Okay, falling forward, kick backwards. Running. Now sideways. Straight. Now next is 2 steps jog करना है, knee को lift करना है, cross. 2 step jog, then cross on the side. चलिए, ready, start. 2 steps, cross. Continue 2 steps के बाद. Now change, 2 steps out and in. 2 steps out and in. देखिए 2 steps करना है, out and in. Then again 2 steps forward, out and in. चलिए start. Now next chain exercise. Now in and out and in. Combine करना है. चलिए start. Okay, now change, straight running. Run. Now open forward. Straight. Open.
and twist. Straight. Next is high knee action. High knees. High knees, high knees. Change butt kicks. Straight. Open forward. Straight. Backward. Backward jump. Straight run. Okay. Relax. Come in front. सामने आ जाए. Now, we'll start stretching. Neck up and down. 8 counts करना है. Change. Left and right. Change. Sideways bend. Change. Rotation. Rotate करें. Keep your open. Keep your eyes open. Eyes बंद ना करें. खोल के रखें. Reverse. Okay, relax. Now, so rotation. Rotate करें आपको. Reverse. Change. 2 times हाथ को ऐसे स्ट्रेच करना है and 2 times पुल ओपन करके. चलिए ready. 1, 2, 3 and 4. Again 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 and 4. Last time 1, 2, 3 and 4. Relax. The next is elbow rotation. Elbow slightly bend रखें and now rotate. Reverse. Relax. Now, arm straight, now wrist rotation. Reverse. Relax. Now side bending. 2 times sideways. 1, 2 and then 2 times के लिए hand को stretch करना forward. Change. 1, 2, 3, 4. Come back again. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3 and 4. Come back. Now, both hands on your waist. कमर पे रखें. Hips rotation. Rotate करें. Reverse. Relax.
Now 2 times forward bend होना है, 1 2 and 2 times backward, 3 4. Start, 1 2 3 4. Again, 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 and 4. Change. Now pull leg sideways. Now 2 times toe touch करना है, 2 times elbow को touch करना है and 2 times backward जाना है. Last में 2 times touch करना है. अब उड़ा के एक बार देख लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. चलिए स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Again. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Again. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Last time. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Relax. Now next is try to turn your left foot. Press करना है इसको downwards. 1 2 3 4 5 6. Change. Other side. 1 2 3 4 5 6. Change. दोनों legs join करें, shake करें. Now ankle rotation, reverse, again foot change, reverse, sit down, बैठ जाएं. लेफ्ट लेग को सामने रखें, राइट लेग को बेंड करें. Now we'll have to start from sideways. 2 times side में 1 2, then come forward 3 4. Again 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Change. Side change. Start. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 and 4. Change. Now open your leg sideways. Leg to side में खोलें. Maximum. Yes. Bring your left arm in front, sideways again. Start. 1 2. Change. 3 4. Again, come back. 1 2 3 4. Again. 1 2 3 4. Change. 1 2 3 and 4. Now next exercise. लेफ्ट फुट को फ्रंट एंड राइट को टच करना है और लास्ट में 2 टाइम्स स्विंग करना है आर्म्स को साइडवेज. रेडी, स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Again. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Again. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Relax. दोनों legs को join करें आपस में. 2 times forward जाना है, swing करना है and उसके बाद 2 times sideways हाथ को निकालना है. Ready? Start करेंगे. Ready? 1 2 3 4. Come back. Try to keep your foot straight. Ready? Start. 1 2 3 4. Come back. Again. 1 2 3 4. Come back. Once again. 1 2 3 4. Come back. Okay. Now lift your left leg up.
Try to hold from calf. Try to keep your knee straight. Pull करना है और उसको relax छोड़ना है. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Change. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Change. Stand on knee. Bring your left arm in front. Now press your shoulder down. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Change. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Change. Left arm outside. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Change. Right. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now cross inside. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Change. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Come back. Stand up. Relax, relax. Now we'll do some stimulating exercises. सबसे पहले we'll start with jumps. उसके बाद एक coordinative exercise करेंगे agility के लिए. Now next, first exercise is on spot jump करना है आपको around 20 counts. Soft jump. Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20. Relax. So 20 jumps करने हैं आपको. Ready? Start. Jump, jump, jump. Relax. Now next, after every 2 soft jump, एक power jump करना है. तो total आपको 5 power jump करने हैं. कैसे करना है देखिए. 2 normal hops and 1 power. 2 normal and 1 power. 2 normal, 1 power. 2 normal, 1 power. 2 normal, 1 power. Ready? Total 5 counts करना है. साइड में देखिए कैसे करना है. It is 2 soft and 1 power. 2 soft, 1 power. Try to keep your legs straight. Knee को straight रखना है. जो लैंडिंग है वो बॉल ऑफ फुट के ऊपर रहेगी, आपके टो के ऊपर रहेगी. Ready? Start. 1, 2, and 1 power. 1, 2, and 1 power. 1, 2, 1 power. 2, 1 power. Relax. जब आप पावर जंप करते हैं, ट्राई टू इंक्लूड ऑल फोर्सेस यू आर हैविंग. आपके पास जितनी पावर है उसको लगाने की कोशिश करें. अगर आप आदत डालेंगे तो आपको पावर को यूज करना आएगा. इट इज हाउ टू यूज. आप कैसे अपने पावर को यूज करेंगे उसके लिए है. रेडी? वंस मोर सेम एक्सरसाइज. 2 jump and 1 power. 2 jump and 1 power. Power. Relax. Now next is आपको 5 soft jumps करने हैं. उसके बाद नी को अल्टरनेटली लिफ्ट करना है. बट जो लैंडिंग होगी दोनों फुट की, देखिए दोनों फ्लोर पे एक साथ आएंगे, बट लैंड जो रेस होगा वो अल्टरनेटली होगा. और यूज करना अपने आर्म को. चलिए रेडी? स्टार्ट करें. Relax.
Once again, same exercise. Ready? Start jumps. Then start. लिफ्ट करना है. Your arm. Relax. Now next is total आपको 6 जंप्स करने हैं. 6 जंप्स कैसे करने हैं? आपको एल्बो बेंड करके रखना है ऐसे, and you have to throw your arm. But जो थ्रो है, it should be with power, fast. And आपको जब आप जंप करेंगे, लेग को स्प्लिट करना है, वो भी फास्ट. तो कोऑर्डिनेट करना है आर्म्स को, लेग्स को, और वापस आना. टोटल 6 जंप्स. एक बार देख लीजिए. इट इज 6 jumps. Ready? Start. Next is 6 jumps करने पर rotate your arms. arm को rotate करना है, and rotation should be explosive, not slow. Ready? एक बार देख लीजिए. It should be explosive. Ready? Start. And rotation bend elbow के साथ नहीं है ऐसे. It should be full extension of arm. Now reverse, same exercise है, but अब हाथों को उल्टा घुमाना है. Ready? Start. Good. Now last exercise इसी सीरीज की हमें कंबाइन करना है. कंबाइन कैसे करना है? First one is 6 forward, 6 rotation forward, and 6 backward rotation. So इन तीनों को कंबाइन करना है हमें. Ready? आप देख लीजिए, उसके बाद करिएगा. First 6 is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 6, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ready? Combine करके करेंगे. Ready? Take your stance. Ready? Start. 3, 4, 5, 6. Change rotation. 3, 4, 5, 6. Change rotation. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Relax. Relax. Now next exercise, आपको on spot 5 सेकेंड तक फास्ट टैपिंग करनी है. Then आपको 5 steps लेफ्ट साइड जाना है and touch करना है. Come back. Then 5 सेकेंड टैप करना है. फिर 5 steps जाना है, टच करना है, वापस आके then टैप करना है. तो instead of time we'll use counts now. आपको टोटल 8 टैप्स करने हैं, 4 times each foot, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 1, 2, 3, 4, 5, touch, come back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 5 steps, come back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ready? Again, on spot आपको 8 count stepping करनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Touch and come back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then come back. 5 steps. Come back. 8. Then finish. Total 3 counts करने हैं. Ready? Take your stance. Start. Stop. Relax, relax, shake your legs. Okay, once again, same exercise है. 8 taps, 5 steps move. पर जो 5 step move है intensive है, not slow. Push करना laterally, intensive.
Ready? Take your stance. Start. Okay, one more, then we'll have water break. Ready? Come back to position. Take your stance. Start. Relax. Okay, water break. पानी पी लीजिए. पानी पीजिए, पानी पीजिए. कम बैक स्क्रीन के सामने आए. थोड़ा सा वॉक करें, चेक करें लेग्स को. Okay, now we'll start with footwork. सबसे पहले ऑन गार्ड स्टांस रखें. दोनों हाथों को इनसाइड, अंदर की तरफ. रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, इजी. नाउ स्लोली 3 टाइम्स नीचे जाना. अपने फिंगर टिप्स को फ्लोर को टच करना है. पूरा नीचे जाना है. कीप बैक स्ट्रेट, फिंगर टिप्स टच हो जाए. उसके बाद आप up to on guard stance only, then go back again. 2 and then 3 times touch करना है आपने ऐसे. You have to come back only up to on guard stance, not fully up. Again देखिए कैसे करना है. From on guard stance, go down, touch it, come back to on guard, go back, but slow, not fast. Slow. 3 counts and change side. Then change side. Ready? Same exercise. Go down. Keep your back straight. Touch and slow up. 1, 2, and 3. Relax. Relax. Now, we'll start with step forward. अभी स्टेप फॉरवर्ड करना है आपको. टोटल 6 स्टेप्स मूव करने हैं फॉरवर्ड. देखिए कैसे करना है. फ्रॉम ऑन गार्ड स्टांस आप हाथ ऐसे रख सकते हैं, यहाँ ऐसे रख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट रख. बट बेस्ट इज इफ यू कीप इट हियर. नाउ फ्रॉम हियर 6 स्टेप्स मूव करना है, बट स्लो. आफ्टर 6 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करना है. वंस यू कंप्लीट वहीं पर स्टे करना है, देन स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड्स. बट अगेन स्लो. 6 step forward and 6 step backward. एक सीरीज है. Ready? Take your stance. Take your stance. 6 step forward and then 6 step backward move करना है. Ready? आले. And 6 backwards. Relax. Again, same exercise हम repeat करेंगे. 6 steps forward move करेंगे and then 6 steps backward आएंगे हम लोग. Take your stance. On guard.
अगेन 6 स्टेप्स फॉरवर्ड है एंड 6 स्टेप बैकवर्ड है, बट इंटेंसिव होगा, मैक्सिमम स्पीड से आपने करना है, फास्ट फॉरवर्ड जाना है और फास्ट ही आपको बैकवर्ड आना है। 6 स्टेप कंप्लीट होने के बाद वेट नहीं करना है, इमीडिएटली फॉरवर्ड, once you reach 6 steps, 6 steps backward. Ready? Take your chance. Start. Ready? Again, we'll repeat same exercise. 6 step forward and then 6 step backward. Ready? Start. Relax. Now next is double step move करना है. Again, double step आपको move करना है, 6 times आपको forward move करना है. कैसे? पहली सीरीज रहेगी 1 2, हल्का सा pause, then again start 1 2, complete, then start 1 2, then stop. Total 6 times आपको forward move करना है. On guard, translate. दोनों स्टेप्स के रिदम में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है. 2 normal steps forward, finish. 2 normal, finish. चलिए start. Okay, come back. Once again, same exercise. 2 steps forward. 6 times. Repeat करना है 6 times. Ready? Start. Try to maintain balance. Come back. Now next exercise is 6 times step backwards move करना है, 2 steps को combine करके. 1 2 and 1 2. Stop. Stop. 6 counts. Ready? On guard. Start. Relax. Once more. We'll repeat same. Start. Relax. Now next exercise is jump forward. अभी हम 2 different jumps करेंगे. First jump प्रिपरेशन के लिए है, प्रिपेयर करने के लिए, तो वो सॉफ्ट रहेगा. उसकी जो लैंडिंग रहेगी फ्रंट फुट की, वो हील पे रखना है आपने. देखिए कैसे करना है. फ्रॉम हियर सॉफ्ट जंप, बट फ्रंट फुट का जो लैंडिंग रहेगा वो हील पे, बट लैंडिंग दोनों फुट की, जो जंप के बाद का लैंडिंग है वो साइमल्टेनियस रहेगा. एंड देन सॉफ्ट. ओके, ट्राई टू कीप इट एज सॉफ्ट एज यू कैन. बिल्कुल सॉफ्ट और पैरेलल टू फ्लोर, बहुत हायर नहीं जाना है इसमें. टोटल 6 जंप्स फॉरवर्ड करेंगे हम लोग इसमें. ट्राई टू कीप इट सॉफ्ट, बहुत इंटेंसिव नहीं करना है. ये प्रिपरेशन के लिए, जस्ट टू प्रिपेयर. रेडी? स्टांस. स्टार्ट. सॉफ्ट लैंडिंग. Once again, we'll repeat it again. Relax. Now next जो है वो अटैक के लिए है. नेक्स्ट जंप स्टेप फॉरवर्ड अटैक करने के लिए, और उसमें हमें इंटेंसिव रखना है. जो फुट की स्लैपिंग है, फुट की स्ट्राइकिंग है फ्लोर के ऊपर, वो भी इंटेंसिव रहेगी, और नेक्स्ट स्टेप भी इंटेंसिव रखना है आपको. वो देखिए कैसे करना है ना. फ्रॉम हियर तो इस वाले में आपको इंटेंसिव रखना है. रेडी? ऑन गार्ड.
Take your stance. Again, same 6 steps forward जाना है. Start. Now relax, relax. Once more, same exercise. Start. Relax, relax. Now इसी सीरीज को कंप्लीट करना है ना, तो पहले हम लोग करेंगे प्रिपरेशन वाले को. Now जंप स्टेप प्रिपरेशन, नेक्स्ट स्टेप्स भी जो करने हैं वो सॉफ्ट बट रिदम में फॉरवर्ड मूव करना है. देखिए कैसे. फर्स्ट इज जस्ट टू प्रिपेयर, hook, then move forward, but soft, not intensive. Just prepare and then move forward. एक जंप स्टेप फॉर प्रिपरेशन करनी है, 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स मोर आपको मूव करना है, बट जो स्टेप्स रहेंगे इस जंप के बाद वो सॉफ्ट रखने हैं. एक्सरसाइज है, टोटल 5 काउंट्स करेंगे. 1 जंप फॉरवर्ड एंड देन 3 स्टेप्स, जंप स्टेप एंड 3 स्टेप्स फॉरवर्ड. टोटल 5 काउंट्स. रेडी, स्टार्ट. जंप, स्टेप 1 2 3. सॉफ्ट. बट रिदम, जंप के बाद आपको रिदम ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए. अगर आपको हील में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन लैंड सॉफ्ट ऑन टो आल्सो. देन 1 2 3 डजंट मैटर. चलिए स्टार्ट. Again, same exercise 5 times. Relax. And now next exercise, intensive preparation करनी है. अभी अटैक वाला पहले जो किया था हमने वो प्रिपरेशन का था. सॉरी, अभी इंटेंसिव मूव करना है. उसमें क्या करना है देखिए, जंप स्लैप फास्ट करना है. 3 स्टेप्स, इंटेंसिव जंप फॉरवर्ड एंड इंटेंसिव स्टेप फॉरवर्ड अटैक करने के लिए. रेडी, देखिए फास्ट फास्ट, इंटेंसिव जंप है और इंटेंसिव स्टेप फॉरवर्ड मूव करना है आपको. रेडी, टेक योर स्टांस. 5 काउंट्स करेंगे. स्टार्ट. Now last exercise, same preparation रहेगी. Attack one preparation, jump intensive, 3 steps forward and 1 launch. and launch में stay करना है. टोटल 5 काउंट्स करेंगे. देखिए कैसे करना है. लास्ट एक्सरसाइज है ये. From here, intensive jump forward, 3 steps forward, launch, stay there and then come backwards. Again, देखिए कैसे करना है. Intensive jump, 1 2 3, launch, stay there, shoulder relax and on back. 5 counts करेंगे. Ready, on guard, take your stance. स्टांस लीजिए. स्टार्ट. Come back on guard. 1. Now second के लिए ready. Start. 2. Come back. Third के लिए ready. Take your stance. Start. Come back. फोर्थ के लिए रेडी. इंटेंसिव करना है, स्पीड को कम नहीं करना है. स्टार्ट. कम बैक. नाउ लास्ट वन. रेडी, स्टार्ट. रिलैक्स, कम बैक
and relax. Water break, पानी पी लीजिए and come back. Okay, fencers, now sip of water and come again. अपने मोबाइल के पास आ जाइए. Let me welcome our faculty for psychology, Dr. Deepak Mishra, sir. Sir, over to you. Thank you so much. Thank you so much. उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है. देख करके आप लोगों की जो इंटेंसिटी है एक्सरसाइज की देख करके बहुत अच्छा लग रहा है. इस लॉकडाउन के टाइम में इतनी बढ़िया एक्सरसाइज होती हुई देख करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. और आज हम लोग जैसे पिछले बार हर बार जो है एक स्किल की हम लोग बात करते हैं कि कोई एक स्किल जो कि हमको स्पोर्ट्स के अंदर अपने गेम के अंदर हेल्प कर सकती है. तो वैसे ही आज एक और स्किल बताने की कोशिश करता हूं. आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है. तो जैसे एक हमारी बहुत कॉमन कंप्लेंट रहती है, एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम हमारी होती है, सबके साथ होती है. हम कहते हैं बॉडी नहीं चल रही. जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम गेम करने जाते हैं और उस दिन बॉडी नहीं चलती, ऐसा लग रहा है कि बॉडी नहीं चल रही, जैसे बॉडी जाम हो गई हो. हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही. ऐसा होता है कि लगता है कि बॉडी नहीं चल रही, कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम पूरी तरह से तैयार हैं, सब कुछ हमने किया हुआ है, लेकिन पता नहीं आज के दिन कुछ ऐसा है कि बॉडी ही नहीं चले. हम कितना भी मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सर ने इतनी सारी आपको मूवमेंट्स बताए, इतने सारे स्किल्स बताए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉडी कर ही नहीं पा रही है. क्या प्रॉब्लम? तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिकली कहने की कोशिश करें तो इसको कहते हैं कि मसल टेंशन. मसल टेंशन यानी कि मसल में जो टेंशन है वह ज्यादा हो गई. यह ज्यादा क्यों होती है? जब हम किसी वजह से स्ट्रेस के अंदर होते हैं, एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, या इवन हम थके हुए होते हैं, ठीक है, थके होने पर भी. तो ये चीजें जो है थकान होने पर, ओवर ट्रेनिंग हो जाने पर या स्ट्रेस होने पर ये चीज हमारे अंदर होती है कि हमारी जो मसल टेंशन है, जो हमारी मसल स्ट्रेस है, वह बढ़ जाती है. ठीक है. उसी को हमको जो हम अपने शब्दों में कहते हैं, जो हमारे बच्चे हमसे आकर के बताते हैं, जो बच्चे कोचेस से कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बॉडी नहीं चल रही है, शरीर जो है आपका वो नहीं चल रहा है इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, जो आप करना चाहते हैं उस चीज में आपको हेल्प नहीं मिल पा रही. तो इसके लिए जो एक टेक्निक है जो कि इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम है जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, JPMR उसका शार्ट में नाम है. उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये मसल टेंशन वाली प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, कि जब हमें ऐसी प्रॉब्लम हो कि हमें लगा हमारी बॉडी नहीं चल रही है, तो उस वक्त हम ये JPMR टेक्निक जो है वह इस्तेमाल करते हैं. इसके इस्तेमाल से जो है हम अपनी मसल्स को काफी हद तक रिलैक्स कर सकते हैं और दोबारा से अपनी जो रिदम है, रिदम को हासिल कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको करना यह है कि आप जहां पर हैं वहां पर सीधा लेट जाइए, जमीन पर या जमीन पर अपनी जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वहां पर आप सीधा लेट सकते हैं. मैट रख सकते हैं, मैट रख करके सीधा लेट जाइए. एकदम आराम से लेटना है, एकदम आराम से लेटना है, जैसे कि आप एकदम कंफर्टेबली लेटे हुए हो. एकदम आराम से आपको लेटना है, दोनों हाथ अपने साइड में रखने हैं और अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है. अपनी बॉडी के अंदर बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं डालनी है, एकदम इजी होकर के आपको लेट जाना है. ठीक है. पहला स्टेप ये होगा कि आप अपनी बॉडी को इजी रख करके और वहां पर एक जगह पर मैट डाल करके, या आपका ट्रेनिंग ग्राउंड अगर इस तरीके का है तो वहां पर आप सीधा लेट जाएंगे, बॉडी के अंदर कोई टेंशन नहीं डालेंगे, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, दोनों पैर सीधे रहेंगे, एकदम आराम से आपको लेटना है. पहले स्टेप. प्रिंसेस, जो इंस्ट्रक्शन मिली है प्लीज करें उसको. लेट जाइए. अगर वहां पर फैसिलिटी है जहां पर आप हैं तो आप इसको मेरे साथ साथ करने की कोशिश कर सकते हैं. तो वहां पर लेट जाएंगे, ठीक है. और उसके बाद से क्या करेंगे? उसके बाद से जब हम लेट जाएंगे तो सबसे पहले लेट करके जो है
आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, मैं जो बातें कह रहा हूं, उसको सुन करके फॉलो करने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्या करना है, आंखें बंद करके आप लेटे हुए हैं, आंखें आपने बंद की हुई हैं, आपका बॉडी जो है वो एक रिलैक्स पोजीशन में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी सांस लेने की स्पीड के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी सांसों पर, ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अभी आप देखेंगे कि आपने एक्सरसाइज किया हुआ है, आपने वर्कआउट किया हुआ है, तो इस वर्कआउट की वजह से क्या होता है कि हमारे जो सांस लेने की स्पीड है वह तेज हो जाती है, हम जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं और हमारे सांसों की लंबाई जो है वह छोटी हो जाती है, यानी कि हम तेज सांसें ले रहे हैं और छोटी सांसें ले रहे हैं। जस्ट आफ्टर द वर्कआउट हम जो ब्रीदिंग करते हैं, दैट ब्रीदिंग इज स्मॉल एंड फास्ट, our breaths are small and fast. So what we want to do is focusing on our breath, ठीक है, अपने ब्रीदिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो सांस लेने की स्पीड है वह धीरे धीरे कम हो जाए, यानी कि हम लंबी सांसें लें, हमारे सांस लेने की स्पीड कम हो जाए, हम गहरी सांसें लें और लंबी सांसें, सांस लेने की स्पीड कम हो जाए और सांसों की लंबाई बढ़ जाए, यानी कि हम धीमी और गहरी सांसें लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हमारे सांस लेने की स्पीड जो थी वह ज्यादा थी, यानी कि हम तेज सांसें ले रहे थे और छोटी सांसें ले रहे थे, लंबाई कम थी। अब हमें कोशिश करनी है कि सांस लेने की स्पीड जो है वह हमारी कम हो जाए, हम गहरी सांसें लें और सांसों की लंबाई जो है वह बढ़ जाए। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमको सीने की बजाय कोशिश करनी है कि हम पेट से सांस लें, सीने की बजाय पेट से सांस लें। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम सांस अंदर की तरफ लेंगे और यह देखेंगे कि हमारा पेट, हमारा जो बेली है, स्टमक, वह कितना ऊपर की तरफ आ रहा है। जब आप सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो बेली ऊपर की तरफ आती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो बेली अंदर की तरफ जाती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बेली के जो हाईएस्ट पोजीशन और बेली की जो लोएस्ट पोजीशन है उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऊंची हो बेली और ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ आए। तो धीरे धीरे इस तरीके से क्या होगा कि हमारे सांस लेने की स्पीड जो है वह कम हो जाएगी और हमारे सांसों की लंबाई जो है वह बढ़ जाएगी। तो हम 2 मिनट इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारे जो बेली है वह सांस अंदर लेने से हमारी स्टमक, हमारी बेली, हमारा पेट कितना ऊपर की तरफ आ रहा है और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट कितना अंदर की तरफ जा रहा है। यह जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आपका पेट ऊपर की तरफ आएगा और जितना ज्यादा आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, आपकी सांस लेने की स्पीड जो है वह उतनी अच्छी हो। तो हम 2 मिनट इसके ऊपर फोकस करेंगे, अपने सांस लेने की स्पीड के ऊपर। अगर आप 2 मिनट इस चीज को करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपकी सांसें, आपकी ब्रीदिंग जो है वह आपके कंट्रोल के अंदर आ रही है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि हमको आंखें बंद किए हुए ही और अपने दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन बनानी है, दिमाग के अंदर हमको एक इमेजिनेशन बनाने की कोशिश करनी है कि हम किसी ऐसी जगह पर हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा आरामदायक है, हम किसी ऐसी जगह पर हैं। तो मान लीजिए ये जगह हो सकती है कि आप कहीं सी बीच पर, समंदर के किनारे पर आप कहीं लेटे हुए हैं, आप कहीं समंदर के किनारे पर हैं। समंदर का किनारा जो है वो ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है और यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल अपने दिमाग में एक अच्छी इमेजरी क्रिएट करने के लिए, प्लीजेंट इमेजरी क्रिएट करने के लिए जो है हम अपने दिमाग में उस इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप कहीं सी बीच पर लेटे हुए हैं। अब सी बीच पर लेटने के साथ जो जो चीजें हमारे साथ होती हैं, हमको वो सारी चीजें अपने साथ होती हुई इमेजिन करें। ठीक है, तो जैसे हम सी बीच पर लेटते हैं, सी बीच पर लेटे हुए हैं आप वहां पर जो पानी बह रहा है, बहते हुए पानी की आवाज आपके कानों में आ रही है, आप बहते हुए पानी की आवाज सुन पा रहे हैं। ये आपको इमेजिन करना है कि आप बहते हुए पानी की आवाज सुन पा रहे हैं। उसके अलावा आसपास जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, उनकी खुशबू आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके अलावा थोड़ी दूरी पर वहां पर लोग हैं, आदमी हैं,
जो वहां घूमने के लिए आए हुए हैं, तो उनकी हल्की हल्की आवाजें जो है वो आपके कानों में पड़ रही है, आप उनकी आवाजें भी सुन पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, ऊपर हल्का सा सूरज चमक रहा है और वो सूरज की गर्माहट आपके शरीर के ऊपर पड़ रही है, सूरज की वार्मथ जो है वो आपके बॉडी के ऊपर पड़ रही है, आप वो वार्मथ अपने शरीर के हर एक हिस्से में पड़ती हुई महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, आप वो वार्मथ अपने शरीर के हर एक हिस्से में पड़ती हुई महसूस कर पा रहे हैं। अच्छा, अब ये और वहां हवा चल रही है हल्की हल्की, वो हवा आपके शरीर के हर एक हिस्से को छू करके गुजर रही है, आपके पूरे शरीर से होकर के गुजर रही है। आपको इन सारी सेंसेशंस को महसूस करना है, इमेजिन करना है कि सचमुच आपके साथ ऐसा हो रहा है। इसके बाद ये सारी चीजें होने की वजह से, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, तो इन सारी चीजों के होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपको इतना कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, आपको इतना आराम मिल रहा है, आपको इतनी शांति मिल रही है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आपके शरीर के अंदर कोई वजन ही ना हो, आपके शरीर के अंदर कोई वजन ना हो और आपका शरीर जो है वह हल्का होकर के हवा में तैर रहा है। आपका शरीर जो है उसके अंदर कोई वेट नहीं है और आपका शरीर हल्का होकर के जैसे हवा में तैर रहा हो, ये सारी चीजें होने की वजह से। तो आप कहीं सी बीच पर लेटे हुए हैं, आप वहां पर जो पानी बह रहा है उसकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप वहां जो पेड़ पौधे हैं उनकी खुशबू को महसूस कर पा रहे हैं, आप वहां पर जो आसपास में लोग हैं उनकी हल्की फुल्की बातचीत आपके कानों में पड़ रही है, ऊपर से हल्की धूप चमक रही है, वह धूप आपके शरीर के ऊपर पड़ रही है, उससे आपको गर्माहट का एहसास हो रहा है, हवा चल रही है, हवा आपके शरीर के अलग अलग आपके शरीर पर से होकर के गुजर रही है, आप उसको अपने शरीर के ऊपर महसूस कर पा रहे हैं। और ये सारी चीजें होने से आपको इतना कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके शरीर के अंदर कोई वजन ना हो और आपका शरीर हल्का होकर के हवा में तैर। ठीक है, तो यह इमेजिनेशन जो है वह हमको अपने दिमाग में बैठानी है और इस कोशिश करनी है कि कोई दूसरी बात जो है, कोई दूसरा थॉट आपके दिमाग में इस समय ना आए, आपका दिमाग टोटली जो है वह इस इमेजिनेशन के ऊपर फोकस हो। ठीक है, ऐसा देखिए, ऐसा पहली बार में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पूरी तरह से मतलब केवल इसी पर फोकस कर पाएंगे, आपके दिमाग में दूसरी बातें नहीं आएंगी, थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है इसको करने के लिए। तो ऐसा आप धीरे धीरे इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह एक तरह से डेली करने वाली चीज है, इसको ये डेली करने वाली स्किल्स है, तभी ये स्किल्स जो है आगे लॉन्ग टर्म में आपको फायदा पहुंचाती है। और यही वह स्किल्स है जो कि हम कहते हैं कि हमको गेम डे के दिन, किसी इंपॉर्टेंट गेम के दिन जो है जो स्किल्स यूज करनी है, तो अभी मैं जब कराऊंगा इस स्किल को तो उसको करने में आपको 15-20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतनी एक्सपर्टाइज हो जाएगी कि आप इसको 2-4 मिनट के टाइम में भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यही स्किल जो आप यहाँ सीखेंगे यह ले जाके अपने गेम डे के दिन जो ब्रेक टाइम होगा, जब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज करने की जरूरत है, ये चीज में स्ट्रेस टेंशन हो रही है, आप क्या करें, तो वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस चीज को जो है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके ऐसा होगा कि यह इतनी ज्यादा ऑटोमेटिक होगी कि आप इसको 2-4 मिनट के अंदर कर पाएंगे और गेम डे के दिन एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में हमको ऐसे ही लेटे लेटे दिमाग में वह इमेजरी रखे जो हमने इमेजिनेशन की, दिमाग में वह इमेजिनेशन बनाए हुए अब हमको जो है इस एक्सरसाइज का मेन पार्ट शुरू करना है। तो मेन पार्ट क्या है, सबसे पहले अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को हम कस करके बंद करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियों को, दोनों अपने जो मुट्ठियां हैं, फिस्ट है, उसको कस करके खींचेंगे, मुट्ठियां कस करके खींचेंगे हम, और अपने मन में 20 तक काउंटिंग करके खींच के रखेंगे। 20 तक काउंटिंग करके मुट्ठी कस करके बंद करके रखेंगे। ठीक है, 20 तक काउंट करके और मुट्ठी हमको कस करके बंद करके रखनी है। ठीक है, 20 तक काउंट में मन में 20 गिनेंगे, हल्का हल्का 20 गिनेंगे और मुट्ठी बंद करके रखेंगे। जब 20 की काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम फिर मुट्ठी खोल देंगे। 20 की काउंटिंग पूरी होने पर मुट्ठी खोल देंगे और फिर 20 तक गिनेंगे। यानी हमको 20 तक गिन करके मुट्ठी बंद करके रखनी है और फिर 20 तक गिन के मुट्ठी खोल के रखनी है। ठीक है, जब मुट्ठी बंद करेंगे तो मुट्ठी के ऊपर हम
जोर लगाएंगे, अपनी फिस्ट के ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे, जिससे कि हमारी फिस्ट जो है वह उस पर थोड़ा सा प्रेशर करे। तो यह चीज हमको 3 बार करनी है, यह चीज हमको 3 बार दोहरानी है। 3 बार मुट्ठी बंद करनी है, 3 बार मुट्ठी खोलनी। तो जब हम मुट्ठी बंद करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन देंगे स्ट्रेस 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 बोल के अपनी मुट्ठी जो है वह भींच करके रखेंगे और फिर रिलैक्स बोल के मुट्ठी खोल के रखेंगे। तो 3 बार 20-20 के काउंट पे हम मुट्ठी बंद करके रखेंगे और फिर मुट्ठी खोलेंगे। 20 के काउंट पे मन में 20 तक गिन के मुट्ठी भींच करके रखेंगे और फिर जब 20 पूरा हो जाएगा तो मुट्ठी खोल देंगे और 20 तक खोल के रखेंगे। जब फिर 20 पूरा होगा तो दोबारा से मुट्ठी बंद करेंगे। ये चीज 3 बार करेंगे, ठीक है। जब मुट्ठी से हो, जब हम अपनी फिस्ट पर ये काम 3 बार कर लेंगे, उसके बाद हम आर्म्स पर आएंगे, आर्म्स पर, ठीक है। आर्म्स की पोजीशन पर आएंगे। हमको अपनी आर्म्स, दोनों आर्म्स में जो है स्ट्रेस डालना, दोनों आर्म्स की मसल्स को स्ट्रेस करने की कोशिश करनी, दोनों आर्म्स की मसल में स्ट्रेस करने की कोशिश करनी है। हम अपने दोनों आर्म्स की मसल्स को स्ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसकी जो मसल्स हैं उनको प्रेस करने की कोशिश करेंगे बिना हाथ लगाए, ठीक है, बिना हाथ लगाए। हो सकता है कि आप अगर चाहें तो कोहनी से, एल्बो से अपना हाथ मोड़ सकते हैं लेटे लेटे, और मोड़ करके अपने आर्म के ऊपर स्ट्रेस डालने की कोशिश कर सकते हैं। एल्बो से दोनों हाथ मोड़ करके और आर्म के ऊपर स्ट्रेस डालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, ये स्ट्रेस करके और 3 उसको 20 तक काउंट करके स्ट्रेस बोलेंगे, 20 तक काउंट करेंगे, स्ट्रेस बना करके रखेंगे और फिर जब 20 पूरा हो जाएगा तो उसको रिलैक्स कर सकते हैं, हाथ नीचे कर सकते हैं या उसी पोजीशन में अगर कंफर्टेबल है तो उसी पोजीशन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपनी फिस्ट के अंदर, अपनी मुट्ठी के अंदर, फिर आर्म्स के अंदर, ये दूसरी बार आर्म्स के अंदर करेंगे। फिर हमको तीसरी बार क्या करना है, अपने बाइसेप्स में, अपनी बाइसेप्स में। तो ऐसे ही एल्बो रखे हुए और हम अपनी बाइसेप्स के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। हाथ नहीं लगाना है, अपना हाथ लगा करके किसी बॉडी पार्ट में स्ट्रेस डालने की कोशिश नहीं करनी है। कोशिश ये करनी है कि उस बॉडी पार्ट की जो मसल्स हैं उनको आप खुद से स्ट्रेस कर पाओ, है ना। आप लोग सारे स्पोर्ट्स से हो तो आप लोगों को पता है कि अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट की जो मसल्स हैं उनको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे उन मसल्स को आपको लोकेट करना है और एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो एल्बो से फिर हाथ रखेंगे और अपने बाइसेप्स पर, बाइसेप्स को प्रेस करने की कोशिश करेंगे। या हाथ नीचे भी रख सकते हैं, अगर आप अपने बाइसेप्स को प्रेस कर पा रहे हैं तो हाथ नीचे भी रख के आप अपने बाइसेप्स पर प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने बाइसेप्स को आप स्ट्रेस करेंगे, मन में 20 तक काउंटिंग करेंगे, स्ट्रेस बोल करके 20 तक काउंट करेंगे, बाइसेप्स को स्ट्रेस करके रखेंगे, रोक के रखना है 20 तक काउंट तक स्ट्रेस करके रखना है और जब 20 पूरा हो जाए फिर रिलैक्स कर लेना। फिर जब 20 हो जाए, रिलैक्स किए 20 हो गया तो उसके बाद से फिर स्ट्रेस करना है, फिर उसको प्रेस करना है, प्रेशर डालना है और 20 तक रखना है। तो ये चीज 3 बार करनी है। 3 बार आपको इस मसल को स्ट्रेस करना है और 3 बार रिलैक्स करना है। इसमें एक जरूरी बात यह है कि जो आप स्ट्रेस डाल रहे हैं, जब आप मसल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि वो प्रेशर जरूरत से ज्यादा न हो, उतना ही प्रेशर चाहिए जिससे कि आपको महसूस हो कि हाँ वो मसल एक्टिवेट हो रही है, वो मसल जो है उस मसल के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है। इतना प्रेशर नहीं डालना है जिससे कि मसल जो है, मसल के अंदर पेन हो जाए, ठीक है। तो केवल जितना प्रेशर जो है वो कंफर्टेबली आप बेयर कर सकते हैं उतना ही प्रेशर आपको अपनी मसल के ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट था जहां पर आप अपनी बाइसेप्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। चौथे पार्ट में क्या करना है कि आपको अपने फोरहेड के अंदर प्रेशर बनाना है, फोरहेड के अंदर, अपने माथे पर, माथे में आपको प्रेशर बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका तरीका क्या होता है कि हम अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ पुल करते हैं। आईब्रोज को हाथ नहीं लगाना है, हमको अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ पुल करने की प्रैक्टिस करेंगे। आईब्रोज को जब ऊपर की तरफ, अपनी पलकों को, अपनी भौहों को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो आपके फोरहेड में जो है वह सिकन पड़ेगी। तो वही जो है वह अपने फोरहेड पर स्ट्रेस डालने का तरीका है कि आप लेटे लेटे अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ पुल करेंगे बिना हाथ लगाए हुए और उससे क्या होगा कि आपके फोरहेड पर स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। तो यह स्ट्रेस डाल करके भी आपको 20 सेकेंड तक 20 के काउंट तक होल्ड करके रखना है
20 के काउंट तक आपको आईब्रोज को ऊपर की तरफ पुल करके अपने फोरहेड में स्ट्रेस डालनी है, और फिर 20 का काउंट जब पूरा हो जाए तो रिलैक्स कर लेना है, नॉर्मल हो जाना है। फिर जब 20 का काउंट पूरा हो रिलैक्स में, तो फिर आपको आईब्रोज से स्ट्रेस डालनी है। ये 3 बार होगा। चौथे स्टेप में आईब्रोज के बाद से आईज को कस करके मीचना है, आईज को कस करके मीचना है, ठीक है, बिना हाथ लगाए। यहाँ सारी एक्टिविटी जो है वह बिना हाथ लगाए होगी, है ना, बिना हाथ लगाए। आपको हाथ कहीं नहीं लगाना है, आपको कोशिश करनी है कि जिस आर्गन की बात हो रही है उस आर्गन को आप खुद से स्ट्रेस कर पाए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पहली बार में थोड़ा उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे जो है आप ये चीज कर पाएंगे। तो आईज को आपको कस करके मीचना है और होल्ड करके रखना है 20 के काउंट पे। 20 के काउंट पे आईब्रोज को आपको कस करके, आईज को कस करके मीचना है, आईज को, अपनी आंखों को मीचना है और होल्ड करके रखना है 20 के काउंट पे। 20 के काउंट 20 गिन करके उसको होल्ड करके रखेंगे, और जब 20 पूरा हो जाएगा तो फिर रिलैक्स कर देंगे 20 के काउंट तक। तो ये आईज। उसके बाद चौथे पार्ट में हमें क्या करना है, हमको अपने चीक्स में हवा भर करके और फुला करके उसको रोक के रखना है, ठीक है। चीक्स के अंदर हवा भर करके और उसको फुला करके रोक के रखना है। यह हमको क्या है, चीक्स को, अपने चीक्स को स्ट्रेस करने का तरीका है कि 20 के काउंट पे हम अपनी चीक्स को 20 के काउंट पे हवा भर करके मुंह को फुला करके रोक के रखेंगे 20 के काउंट तक, ठीक है। यह हम अपने चीक्स के ऊपर स्ट्रेस डालने का तरीका करेंगे। तो यह 20 के काउंट पर होगा, और इसको जो है 20 के काउंट पर आपको स्ट्रेस करके रखना है, और जब 20 का काउंट पूरा हो जाए तो फिर चिक्स को नॉर्मल कर लेना। 3 बार चिक्स के ऊपर 3 बार चिक्स के ऊपर, ठीक है। चौथे स्टेप, इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, टीथ दांतों, ठीक है। तो दांत, जैसे हम कभी गुस्से में होते हैं तो दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस करते हैं, दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस करते हैं जब कभी हम गुस्से में होते हैं, तो वैसा ही करना है हमको दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस करके और 20 के काउंट पे होल्ड करके रखना है। दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख करके प्रेस करके 20 के काउंट पर होल्ड करके रखना है। 20 सेकेंड रिलैक्स एंड 20 सेकेंड रिलैक्स एंड 20 सेकेंड स्ट्रेस, ठीक है। यह भी 3 बार होगा कि हम दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख करके प्रेस करके और होल्ड करके रखेंगे 20 सेकेंड तक, 20 के काउंट तक, और फिर जो है 20 के काउंट तक रिलैक्स करेंगे। ये 3 बार। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में हमको अपने चेस्ट को फुला करके, जैसे हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हमको अपने चेस्ट को फुला करके चेस्ट को ऊंचा करके अंदर की तरफ सांस लेंगे, चेस्ट ऊंचा होगा, ठीक है। तो चेस्ट को फुला करके और रोक के रखना है 20 के काउंट पे। हमको अंदर की तरफ सांस लेनी है और हमारा चेस्ट बाहर आ जाएगा, उसको हमको होल्ड करके 20 के काउंट तक रखना है, ठीक है। 20 के काउंट तक। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से कुछ पार्ट जो है वहां पर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अनकंफर्ट महसूस होगी, आपको थोड़ी डिस्कंफर्ट महसूस होगी। तो जितनी देर आप उसको कंफर्टेबली कर पाए, अगर आप 10 सेकेंड, शुरू में 10 सेकेंड ही कंफर्टेबली कर पा रहे हैं तो आप 10 सेकेंड ही करिए। 20 सेकेंड कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि 20 सेकेंड ही करना है, आप उसको 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितनी देर आप कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं उतनी देर आप उसको कंफर्टेबली हैंडल करें, ठीक है। तो सांस अंदर की तरफ लेकर के चेस्ट को फुला करके हमको उसको होल्ड करके रखना है 20 के काउंट पे, और जब 20 पूरा हो जाए फिर रिलैक्स, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। और ये सारी एक्टिविटी हम लेट के कर रहे हैं और दिमाग में हमारे जो इमेजिनेशन हमने शुरू में बनाई थी उस इमेजिनेशन को दिमाग में रखे हुए कर, ठीक है। तो चेस्ट, इसके बाद अगले स्टेप में स्टमक, पेट, ठीक है। जब आप सांस अंदर की तरफ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट जो है, सांस अंदर लीजिए और उसको होल्ड करके, यानी पेट को अंदर की तरफ खींच करके और उसको रोक के रखना है। बेसिकली
हमको क्या करना है कि हमको पेट को अंदर की तरफ खींच के और रोक के रखना है। पेट को अंदर की तरफ खींचिए और उसको होल्ड करके रखिए 20 के काउंट पे। 20 तक गिन करके पेट को अंदर की तरफ खींच करके रोक के रखिए। 20 तक गिनना है और जब 20 पूरा हो जाए तो फिर उसको रिलैक्स कर लेना है, नॉर्मल कर लेना है। 3 बार हर एक एक्टिविटी, हर एक आर्गन की जो एक्टिविटी बताई वह 3 बार करनी है। 20 के काउंट पे अंदर की तरफ पेट खींचना है, उसको रोक के रखना है 20 के काउंट तक और फिर जो है उसको हमको रिलैक्स कर लेना है। ठीक है, तो यह स्टमक। स्टमक के बाद अगले पार्ट में हमारी आती है थाइस। ठीक है, लेटे लेटे आप क्या करेंगे, अपने दोनों थाइस में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी थाइस की मसल्स को बिना हाथ लगाए अपने थाइस की मसल को स्ट्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है, बिना हाथ लगाए अपनी थाइस के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, अपनी थाइस की मसल को थोड़ा सा स्ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और उसको 20 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 20 के काउंट तक होल्ड करेंगे। जब 20 पूरा हो जाएगा तो फिर रिलैक्स करेंगे। तो थाइस में 3 टाइम्स हमको स्ट्रेस करना है और फिर रिलैक्स करना है। 3 टाइम्स थाइस। थाइस के बाद नंबर आता है हमारे काफ का, काफ मसल्स का। ठीक है, काफ मसल्स का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप चाहें तो नी से अपने पैरों को मोड़ सकते हैं। लेटे लेटे नी से अपने पैरों को मोड़ सकते हैं। वेरी गुड, नी से अपने पैरों को मोड़ सकते हैं और आप अपने काफ मसल्स पर प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हैं। काफ मसल्स पर प्रेशर डाल, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टो को अपनी तरफ अगर खींचें, अपने टोस को अपनी तरफ अगर उठाएं तो क्या होगा कि इससे आपकी काफ मसल्स पर प्रेशर पड़ेगा। तो हम अपनी काफ मसल्स पर प्रेशर डाल करके 20 तक होल्ड करेंगे। मन में 20 तक गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। जब 20 पूरा हो जाएगा तो रिलैक्स कर लेंगे, उसको आराम से छोड़ देंगे। ठीक है, तो अपनी काफ मसल्स पर आप 3 बार ये करेंगे, स्ट्रेस एंड देन रिलैक्स 3 टाइम्स काफ मसल्स। इसके बाद अगला नंबर आता है हमारी टोज का। आप अपने पैर सीधे कर लीजिए, पैरों को सीधा कर लेना है और पैर सीधे करने के बाद से अपनी टो को जो है वह जमीन की साइड, जमीन जो आपका फर्श है, फर्श की साइड में अपनी टोज को प्रेस करना है। बिना हाथ लगाए अपनी टोज को फर्श की साइड में प्रेस करना है। बिना हाथ लगाए अपनी टोज को फर्श की साइड में प्रेस करना है और प्रेस करके और उसको होल्ड करके 20 के काउंट पे रखना है। 20 के काउंट पे होल्ड करके रखेंगे और जब 20 पूरा हो जाएगा तो फिर उसको रिलैक्स कर लेंगे। 3 बार ये भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज थी यह कंप्लीटली, ये इस एक्सरसाइज का कंप्लीट प्रोसीजर है कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि शुरू होती है यह आपके हथेलियों से, आर्म्स, बाइसेप्स, हेड, आईज, चेक्स, टेट, चेस्ट, स्टमक, थाइस, काफ मसल्स एंड देन टोज। ठीक है, तो यह एक, इसको कहते हैं एक्सट्रीमिटी टू एक्सट्रीमिटी, यानी कि आपके हाथों से शुरू होकर के और आपके पैरों तक जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि कहीं पर भी जो टेंशन आप डाल रहे हैं वह टेंशन जरूरत से ज्यादा ना हो। जितनी देर आप कंफर्टेबली इसको हैंडल कर सकते हैं उतनी ही देर करेंगे। 10 सेकेंड भी हो सकता है, 15 सेकेंड भी हो सकता है, 20 सेकेंड भी हो सकता है और धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो यह टाइम जो है आप बढ़ा भी सकते हैं। दूसरी बात कि यह एक डेली प्रैक्टिस की जाने वाली स्किल है जिसको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए और धीरे धीरे क्या होगा, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उसके फायदे क्या मिलेंगे कि आपका जो टाइम है वह 30 मिनट से कम होकर के बहुत कम हो सकता है, 5-10 मिनट तक आ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप चाहें तो आपको कहीं अगर स्पेसिफिक मसल ग्रुप में लग रहा है कि वहां ज्यादा टेंशन है तो आप केवल उस स्पेसिफिक मसल ग्रुप के लिए इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या फायदा है कि यह एक्सरसाइज जो है वह हमको यह बताती है कि हम अपना जो हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी जो टेंशन है वह कहीं, जो हम पहले बात करते हैं कि कोई हमारा जो टेंशन है उसका सोर्स वह बाहर की तरफ ना होकर के हमारे दिमाग के अंदर है। तो इस एक्सरसाइज से हमको वह चीज समझने में आसानी मिलती है, हमारे दिमाग को वह चीज समझने में आसानी मिलती है क्योंकि दिमाग ये चीज देखता है कि भाई
क्या वजह थी कि अभी इतनी मसल टेंशन महसूस हो रही थी, अभी इतनी बॉडी टाइट महसूस हो रही थी, एकाएक बॉडी रिलैक्स हो गई, एकाएक हमको कंफर्ट महसूस होने लगा। तो जब आप इस एक्सरसाइज को बार बार करते हैं और आपके साथ बार बार ये चीज होती है, तो यह बात दिमाग को समझ में आती है कि ऐसा जो है यह दिमाग के अंदर अपने स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, और आप जब भी चाहें तब इसको, इस एक्सरसाइज को करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से कंट्रोल के अंदर आ जाती है, फिर आप उनसे अपने करियर में कभी परेशान नहीं होंगे। तो ये एक्सरसाइज थी जिसको हम लोग जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। तो थैंक यू सो मच आपकी पेशेंट लिसनिंग के लिए। आशा करता हूं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई इसके बारे में क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने कोच साहब से पूछ सकते हैं, और कोच साहब के थ्रू मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे सकता हूं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर दीपक मिश्रा जी, इट वाज वंडरफुल टॉक। और आप सबको मैं बताना चाहूँगा, जो सर ने प्रेजेंटेशन दी है, जो आपको टॉक बताई है आज, ये जो थेरेपी है, ये जो मेथड है, इट इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द टॉप क्लास फेंसर्स और एथलीट। इसको टॉप के जो एथलीट्स हैं वो इसको यूज करते हैं, और ये एग्जिस्टेंस में यूज हो रही है, और इसका फायदा वो लोग ले रहे हैं। इसीलिए ये आपको बता रहे हैं कि इस चीज पे रिसर्च हो चुकी है, इसको यूज कर रहे हैं, ताकि वो बाउट से पहले जब आप फील करते हैं कि आप टेंस्ड हैं, आप टाइट हैं, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपके मसल्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसकी थेरेपी है, उसके लिए एक एक्सरसाइज है जो आपको उस चीज से दूर लेके जाती है। तो ये सर ने जो बताया कि अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी है इसको कंपटीशन में यूज करवाना, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं उसका यूज हम कहाँ करते हैं? कंपटीशन में। तो कंपटीशन में यूज करने के लिए हमारे ट्रेनिंग को, हर एक टेक्निक को हम ट्रेन करते हैं। हम फुटवर्क करते हैं, लेसन लेते हैं, हर एक चीज को हम ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी, ताकि हम उसको यूज कर पाए कंपटीशन में। तो सेम ही जो टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, वो सिर्फ एक दिन करने से आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस सर का जो कहना है वो यही है कि हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें ये बाउट में फायदा देगा, कॉम्पिटिशन में फायदा देगा। आप सिर्फ कॉम्पिटिशन में करने की कोशिश करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसका कोई आउटकम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी हैं, तो आप हमारे ग्रुप पे लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हम डॉक्टर साहब से लेके आपको दे देंगे, या हम आपको डायरेक्टली लाइव भी क्लास में लाके आपसे आपके जो क्वेश्चन है, डाउट है, उनको हम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब आपके वंडरफुल टॉक के लिए। और सब एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे फेंसर्स का अटेंडेंस मार्क करें और हमें सेंड कर दें। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को 6:45 पे। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।